तो शुरू Assalamu alaikum dear students of class 12th. Today our topic is sentence and its types. Yes, you know what a sentence is. Yes, it is a group of words. It is a group of words. Yes, that makes a complete, yes, complete sentence. For example, Rashid sat in a corner. Where do you live? Or be quiet. Here's the student. These are group of words which make a complete sentence, though they form a sentence. Now, kinds of sentence. Kinds of sentences are number one is declarative. Declarative or assertive sentence. Assertive. Number two is interrogative. Interrogative. Number three is imperative. Yes, number four is exclamatory. Yes, dear student. Assertive sentence is that which makes a statement or which makes an assertion. For example, he sat on a wall. He sat on a wall. Yes. It is also called assertive. What it makes? It makes a statement or it makes an assertion. Likewise, interrogative, which asks a question. For example, where do you live? Do you like apple? Do you like apple? That is a what question, and that is a yes or no question. Yes, dear students. Then there is imperative sentence. In imperative sentence, we express command or requests or entreaties. Command or requests or entreaties. Yes. For example, be quiet. Be quiet. Have mercy upon us. Yes. Then there are exclamatory sentences. Yes. They express strong feelings. Strong feelings. Yes, dear students. How cold a night is, for example, how cold the night is. Yes. What a shame, or how lovely the rose is. These are exclamatory sentences. Now, dear students, let us take parts of a sentence. Parts of a sentence. You know, a sentence has two parts. Two parts. Yes. Number one is subject, and number two is predicate. Yes. What a subject is? It is the part of a sentence which names the person or thing we are speaking about. हम किस पर्सन या चीज के बारे में बोल रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट. और ये याद रखना चाहिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट को छोड़ते हैं.
उसमें हम सब्जेक्ट को छोड़ते हैं। यस, नंबर 2 इज प्रिडिकेट। Yes, dear students, predicate means that part of sentence which tells us something about the subject. जो subject के बारे में कुछ चीज कहता है, कुछ बात कहता है. For example, he sat on a bench. Here he is subject and sat on a bench is a predicate. Dear students, here he is subject. It is that part of sentence, you know, which names the person or thing we are speaking about. And predicate means what is said about the subject. What is said about the subject. For example, he is subject, and what is said about the subject? Sat on a bench, so it is predicate. Yes. Nature is the best physician. एक और example, nature is the best physician. इसमें कौन सब्जेक्ट है? नेचर. और प्रेडिकेट क्या है? Is the best physician. Yes. Now, again another classification of sentences. Yes, dear students. Sentences as simple, yes, compound and complex. That is, what is a simple sentence, what is a compound sentence, and what is a complex sentence. अब जो सिंपल सेंटेंस है इसका वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, और इसमें एक और बात है, इसमें सिर्फ एक, इट कैन हैव ओनली वन finite verb. Let me cite you an example. His courage won him prize. तो इसमें क्या है? His courage जो है ये सब्जेक्ट है, won him prize predicate, यानी एक सब्जेक्ट एक predicate. और the fox ran, ये इसमें सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, इसमें सिर्फ एक वर्ब ही है. और इतना ही सिर्फ लीव और गो, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सिर्फ वर्ब ही होता है, फाइनाइट वर्ब भी होता है. ठीक हो गया आपको क्लियर? इसके बाद यस, कंपाउंड सेंटेंस. यस, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होते हैं. हर क्लॉज ग्रामेटिकल इंडिपेंडेंट होता है, एक ही रैंक का होता है, एक ही लेवल का होता है, और इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, लाइक एंड, बट, और, नेदर, और, एटसेट्रा. क्या हुआ अब इसमें टू और मोर मैन क्लॉज होते हैं. शाबाश, एक ही लेवल के होते हैं, एक ही रैंक के होते हैं, और इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बट है, बट
या मोस्ट कॉमन इसमें एंड होता है। इसी तरह क्या है, और एटसेट्रा। ठीक। हाँ, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। द मून was bright. The moon was bright and we can see our way. Our way. Yes, the moon was bright and we can see our way. Dear students, you see here the moon subject was bright. Complete sentence, one subject, one predicate. It has its own stand. We can see our way. We can see our way. We subject can stand can see our way predicate। तो यहाँ ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं या दो मेन क्लॉजेस हैं, इनमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड है। यस, इसी तरह he was poor but he was honest। he was honest। he was poor complete sentence, he was honest complete sentence, joined by coordinate conjunction but। हाँ, so ये भी है, this is also a compound sentence। yes, now let us move to complex sentence। complex sentence, complex sentence में क्या होता है, इसमें वन मेन क्लॉज होता है and one or more dependent या subordinate क्लॉज होते हैं। यस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और उनमें क्या करते हैं हम, इनमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन लाइक, फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम हु, व्हेन, whom। yes dear students, whom, because, since, though, although। yes dear students, unless। ये ऐसे हम सबऑर्डिनेट कंडीशन इसमें इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। दे rested when evening came। yes, they rested main clause, it can stand on its own as full sentence। when evening came, it can give it a sense when it is when it is joined with, or when it is joined with the rested main clause। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और हमने इंट्रोड्यूस किया इवनिंग कैम किसे, इवेंट से। इसी तरह एक और एग्जांपल, यू मे लीव व्हेन आई टेल यू, व्हेन आई टेल यू। हाँ, यस, व्हेन आई टेल यू सबऑर्डिनेट क्लॉज, यू मे लीव मेन क्लॉज। इसी तरह although he was poor, he was happy। yes, इसमें मेन क्लॉज कौन है, yes true, ये इसमें मेन क्लॉज है और ये इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज। these are examples of complex sentences। now dear students, before learning how to convert simple sentence into compound or compound into simple, and likewise compound into complex or simple, we have to learn about type of clause।
Yes, types of collages. Types of collage. First, you know what is a collage. A collage is a part of sentence or is a sentence, or it must have its own subject and predicate. Now, dear students, let us see what is meant by principal clause. Principal clause or main clause. Main clause. Yes, it is a clause which makes good sense by itself. ये वो clause है जो good sense खुद ब खुद बनाता है. It can stand by itself as a separate sentence. ये एक separate sentence के तौर पर ठहर सकता है. For example, the moon was bright. The moon was bright, and we could see our way. ये the moon was bright main clause है. Yes, या principal clause है. We could see our way, ये भी main clause है, क्योंकि ये independently exist कर सकते हैं अगरचे ये and से join किए हुए हैं. Yes, इसके बाद है subordinate और dependent clause. शाबाश. ये वो क्लॉज है जो बाय इटसेल्फ स्टैंड नहीं कर सकता है या अपनी सेंस नहीं दे सकता है. हाँ, तो ये अपने सेंस के लिए, मीनिंग के लिए डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज पर जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, they rested when evening came. ये they rested, ये by itself गुड सेंस देगा. हाँ, तो ये मेन क्लॉज है. when evening came ये पूरा मानी नहीं देगा, पूरी सेंस इसकी नहीं आएगी जब तक ये इसको they rested यानी मेन क्लॉज के साथ मिलाया नहीं जाए. तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक. अब एक और क्लॉज की हमें यहाँ जरूरत है कन्वर्जन में, तो वो है नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज क्या हुआ? ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो एक नाउन का काम करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो मेन क्लॉज में नाउन का काम करता है. यस, तो ये क्या है? इट इज ए subordinate. It is a subordinate clause. The subordinate clause which does the work of a noun in a complex sentence. For example, what he said was true. What he said was true. शाबाश. यहाँ ये what he said was true, what was true, what he said was true. तो ये subject of वो बनता है was का. was true इसका subject बनता है what he said. हाँ, तो ये बन गया noun clause. हाँ, noun clause इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. तो इसलिए ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वाज बन गया. इसी तरह है why he left is a mystery. Why he left is a mystery. Yes, तो यहाँ ये why he left is a mystery. What is a mystery? Why he left? तो ये सब्जेक्ट बनता है, वर्ब is का सब्जेक्ट बनता है. ठीक. इसी तरह कभी कभी ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी बन सकता है. ठीक. I hoped हाँ, that was true, that it was true, that it was
true. Yes, I hoped that it was true. तो यहाँ I hoped इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया? That it was true. तो ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट वह hoped का। इसी तरह एक और एग्जांपल, I expect that I shall get a prize. तो यहाँ क्या होता है? I expect what? I expect that I shall get a prize. तो ये भी मॉडिफाई करता है, ये नाउन का काम करता है। इसी तरह there is no money in what you say. Here ग्रुप ऑफ वर्ड्स in what you say ये स्टार्ट होता है इन से, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बनता है किसका? प्रीपोजिशन इन का। एक और एग्जांपल, you must never forget this, that honesty is the best policy. तो यहाँ क्या है? जो नाउन क्लॉज है ये इन अपोजिशन है, इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। What you must never forget this. क्या फॉरगेट नहीं करेंगे? That honesty is best policy. ये इसके अपोजिशन में है, APPOSION, हाँ एक नाउन या प्रोनाउन। ठीक, इसके बाद है एक और एग्जांपल, my belief is that he will not come. तो यहाँ ये कंप्लीमेंट बनता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इसी तरह है दिस इज वायर आई लिव, ये भी बनता है कंप्लीमेंट किसका? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन का। इसी तरह एक और नाउन क्लॉज के एग्जांपल, द चाइल्ड वाज अफ्रेड दैट ही वुड फॉल डाउन। तो यहाँ नाउन क्लॉज जो है, नाउन क्लॉज ये अक्सर आता है after an intransitive verb. The child was afraid that he would fall down. They felt sorry that they lost the match. इसी तरह है, we know that Rashid is alive. We know that Rashid is we know that Rashid is alive. We know Rashid is alive. तो यहाँ ये है एक्सेसिव विथ इन्फिनिटिव। इस तरह है। इसके बाद हमें करना है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है? ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें ये किसका काम करता है? डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ये एडवर्ब का काम करता है मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज में। आप जानते हैं एडवर्ब क्या है? एडवर्ब होता है जो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को या एडजेक्ट को या दूसरे एडवर्ब को, लेकिन यहाँ किसमें? मेन क्लॉज में ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। हाँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ क्लियर करने के लिए। स्ट्राइक द आयरन while it is hot, while it is hot, ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ स्ट्राइक द आयरन, असल में अगर इस तरह फुल सेंटेंस बोलेंगे यू स्ट्राइक द आयरन, लेकिन यू हमने यू ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड है स्ट्राइक द आयरन, तो यहाँ शाबाश स्ट्राइक द आयरन while it is hot, ये while it is hot ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये मेन क्लॉज स्ट्राइक द आयरन में स्ट्राइक है वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। जी यू आर टॉलर, you are taller than I thought, तो you are taller, इसमें ये taller क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो ये मॉडिफाई कैसे होता है? than I thought। तो than I thought जो है ये क्या है? ये
देन आई थॉट ये एडवर्बियल क्लॉज है क्योंकि ये मॉडिफाई करता है यहाँ मेन क्लॉज में एडजेक्टिव को। ठीक, इसी तरह है he ran so quickly, he ran so quickly, he ran so quickly that he soon overtook me, overtook me. He ran so quickly that he soon overtook me. शाबाश, यहाँ क्विकली क्या है एडवर्ब, तो ये किससे मॉडिफाई होता है, सो दैट ही सून ओवरटुक मी, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये एडवर्ब का क्लॉज है, क्योंकि यहाँ मेन क्लॉज में इस एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। Yes student, now let us move to adjective clause. Adjective clause और adjective clause, शाबाश, ये सिंपल है। आप, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो वर्क करता है किसका, एडजेक्टिव का। तो इसका काम क्या है, ये मॉडिफाई करेगा किसी नाउन को या प्रोनाउन को, लेकिन मेन क्लॉज जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो काम करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम होता है ये क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को, लेकिन ये क्या करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये मॉडिफाई करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को, इसमें मेन क्लॉज है। ठीक, फॉर एग्जांपल ऑन easy lies the head that wears the crown. Yes dear students, uneasy the lies है, बेचैन वो शख्स होता है या उसका सर बेचैन होता है, तो यहाँ हेड जो है ये नाउन है। अब इसको क्वालिफाई करता है कौन, that wears the crown, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया क्योंकि ये मेन क्लॉज में प्रोनाउन ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक, एक और एग्जांपल, he is the man, he is the man, he is the man whom we all respect, whom we all respect. Yes dear student, he is the man, ये पूरा सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, whom we all respect ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये मॉडिफाई करता है किसको, मैन को, जिसको हम सभी रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये मैन जो है नाउन है, इसको मॉडिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस आपको बताता हूँ, गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, तो फूड इसको मॉडिफाई करता है विच आई मे ईट, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह एक और सेंटेंस, गिव मी सम फूड टू ईट, तो यहाँ जो टू ईट है ये यूज ऑफ इन्फिनिटिव हो गया एडजेक्टिव क्लॉज के बदले, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक, I feel today it is enough.